shara kaba kasara manahana manhara bara kala kala la kara kara rabashi ke tere kotoro la bakara la Sura balaranda kara bastora ka sura riba kite haliba sura yire soke nere bestikirele sukho nabosta kalamba tarakastora hete valere takere halebe sorere zura kata zapala hakata sororo zero rabaka nakosarebe helebe serike zure balakata saraba hanaka saraba sunakata raba halastakata zura raba kalaba sakata halaba soro balokate sokine kuta raba hasari rahaba kata soro koti nerebesta kotam baralasta halo kabere halebe sokine zune berede helibe serire heribe sekide Zukanari darabasto nakota boraka handora sorara halorate zepede hilere bestike sukana rabasta karaba zanaba sotoko soribe helibe sekite zuna rabakata saraba inakato sa kole testebere seribe setire helibe sekite helibe serire sora rabakata sakana Zarola basakata haraba. Thank you, Jesus. Haraba halaka satere. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. So we continue with our marriage series. तो हम विवाह के जो विषय हमारा चल रहा है उसे हम जारी रखेंगे. The last time, a couple of weeks back, when I spoke about marriage, I want to just do a small recap of what we covered. पिछली बार जो मैंने विवाह के संबंध में हमने बात की थी उसका थोड़ा सा पिछली बार हमने जो शेयर किया था वो हम वापस देखेंगे. So we saw that marriage is a covenant relationship which involves the presence of God. तो हमने देखा था कि विवाह एक ऐसी वाचा है जिसमें प्रभु शामिल होते हैं. The foundation of marriage is God's love. जो विवाह का जो बुनियाद है वो परमेश्वर का प्रेम है. We did a small activity at the end where we were declaring 1 Corinthians chapter 13 about God's love. तो हमने एक एक्टिविटी की थी जहाँ पे हम पहला कोरिन्थियों का 13वां अध्याय में जो प्रभु के प्रेम के बारे में जो बात हुई है उसकी घोषणाएं हमने की थी. So we have to live our married lives imagining that God's love is already inside of us and we are revealing it to our spouse. तो हमें हमारा वैवाहिक जीवन ऐसे जीना है कि जो परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे अंदर है और इस विवाह के द्वारा वो हम दर्शा रहे हैं. Now love is not a feeling. कि जो प्रेम है वो एक भावना नहीं है. It is an action. ये एक चुनाव है, ये एक क्रिया है. God demonstrated his love. He didn't just speak that I love you. He demonstrated his love to us. प्रभु ने सिर्फ कहा नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रभु ने दिखाया कि वो हमसे प्रेम करता है. And his love is sacrificial love. और प्रभु का जो प्रेम है वो एक त्याग भरा प्रेम है. He sacrificed his son for our sakes. प्रभु ने अपने बेटे को बलिदान कर दिया हमारे प्रेम के लिए. So we in a marriage, the spouses need to have that sacrificial love. इसलिए शादी में भी जो हम पति पत्नी हैं उनके बीच में एक दूसरे के लिए ये त्याग भरा प्रेम होना चाहिए. So to all the singles over here right now who are intending to get married, तो जो भी सिंगल लोग हैं यहाँ पे जिनकी शादी नहीं हुई है, I want you to keep this in mind that the marriage covenant that you are going to enter into one day, that is going to be full of sacrificial love. तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब आपकी शादी होगी, जब आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगे तो विवाह के बीच में जो प्रेम होता है एक दूसरे के लिए वो ऐसा ही त्याग भरा प्रेम होता है. It is not difficult. ये मुश्किल नहीं है. It is difficult when we do it through our flesh. ये मुश्किल तब होता है जब हम हमारे शरीर से करने की कोशिश करते हैं. But when you are doing it from the spirit, it becomes very easy. जब आप ये ही काम आत्मा से करते हो तो ये आसान हो जाता है. We saw how God's love rescued us from sin and brought us salvation. तो हमने देखा कि कैसे प्रभु के प्रेम ने हमें
बचाया और हमें उद्धार दे दिया। We talked about the aspects of covenant relationship of marriage. हमने जो शादी की वाचा जो है उसके बीच में जो बहुत सारे चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हमने देखी। So the aspects are three things. First is leaving. ये पहला पहलू उसका ये है कि हमें छोड़ना होता है। Leaving your father and mother, and when we talk about leaving, it's not about abandoning, it's about you becoming independent. तो पहला पहलू हमने ये देखा कि जब इसका विवाह होता है तो वो अपने माता और पिता को पिता से अलग होकर अपने पत्नी से जुड़ जाता है। अलग होने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने माता पिता को त्याग दिया है, मतलब लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अब आप उन पे निर्भर नहीं हो। You need to live your independent family life. आपको अपना परिवार के लिए एक अलग से जीवन शुरू करना है जहाँ पे आप सिर्फ प्रभु पे निर्भर हो। So your decisions have to be from you. It shouldn't come from any other source like your parents or your relatives or friends. तो इसका मतलब जब शादी के बाद आप अलग हो जाते हो, अपनी पत्नी के साथ जुड़ जाते हो, तो आपके जो भी निर्णय होते हैं वो निर्णय आपके परिवार, मतलब आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, उनसे नहीं आने चाहिए, लेकिन आप दोनों में मिल के निर्णय लेने हैं। That is what will turn out into a successful marriage. और उसी के द्वारा आपकी शादी एक सफल शादी बनेगी। The second point we talked about was cleaving. तो दूसरा पहलू हमने देखा था कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहना। So cleaving means that, see, when God brought Eve to Adam, okay, Eve and Adam were still not cleaving to each other. But the moment Adam saw Eve, he began to appreciate her. He began to thank God and said, "This is now bone of my bone, flesh of my flesh." तो हम देखते हैं वचन में कि जैसे प्रभु ने हवा को बनाया था और आदम के पास लाया था, तो उसी समय वो एक दूसरे से जुड़कर नहीं रह रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि वचन में जब आदम हवा को देखता है और उसे देख के परमेश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है कि ये मेरी हड्डियों की हड्डी है, मेरे मांस का मांस है, और वहाँ से होके वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। Only when the understanding is that my spouse is equal to me, then that cleaving becomes successful. और ये एक दूसरे से जुड़कर रहना तभी हो पाता है जब हम हमारे जोड़ीदार को, पति या पत्नी को, एक दूसरे से समान समझते हैं, तभी यह मुमकिन होता है। If one spouse thinks of them greater than the other spouse, then the cleaving doesn't happen properly. अगर एक व्यक्ति है शादी में, पति या पत्नी खुद को दूसरे से ज़्यादा बड़ा समझता है, ऊंचा समझता है, तो वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। And the third part that we looked at is becoming one flesh. और तीसरा पहलू हमने देखा था एक शरीर होना। Okay, when we talk about becoming one flesh, it's a lot of things, and I just covered a very tiny part of it last time. I'm trying to move ahead in that area today that we will be covering. तो तीसरा जो पहलू है जिसमें शरीर में एक होने की बात हो रही थी, उसमें मैंने ज़्यादा पहलू नहीं देख पाए थे हम, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम और ज़्यादा चीज़ें देखें। For some couples, it takes years and years and maybe even their whole lifetime to become one flesh. कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जिनको सालों लग जाते हैं शादी में सही मायने में एक होने के लिए। But once you become one flesh, you know it, and you will start understanding your spouse better than anything else. और जब आप शादी में एक हो जाते हो तब ऐसा होता है कि आप अपने जोड़ीदार को बहुत अच्छे से समझने लगते हो। Then we saw that communication is very important in marriage. उसके बाद हमने देखा था कि शादी में जो कम्युनिकेशन है, जो एक दूसरे से बात करना है, वो बहुत ज़रूरी है। We saw that it is an important tool to have a healthy marriage. तो हमने देखा था कि ये जो कम्युनिकेशन है, संभाषण जो है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है एक अच्छी शादी के लिए। So therefore, if there is anyone who is single and intending to get married, remember, start your communication now itself if you already have somebody whom you are planning to marry. तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा है जिन्हें शादी करना चाहते हैं और उन्हें वो व्यक्ति मिल गया है जिससे वो शादी करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये इसकी तैयारी आप अभी से कर सकते हो। आप उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हो, बातें बढ़ा सकते हो। I will mention just a few scriptures because I don't want to get into all of us reading the scripture. So I will mention some points. So when we are talking about communication, openness and active listening takes priority. This is from James chapter 1 verse 19.
तो मैं कुछ वचन यहाँ पे बताऊंगा, पूरा वचन मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन कुछ संदर्भ में बताना चाहूँगा कि हम आगे जाके उन्हें पढ़ पाए। तो शादी में ठीक से सुनना और ठीक से बात करना, ये दोनों बराबर के ज़रूरी है। और इनका जो वचन है ये याकूब का 1:19. पहला अध्याय 19वां वचन में है। Okay, so we won't go there, but we'll just go through the. I'm still doing a recap. तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ पिछले बार हमने क्या क्या देखा था इसकी एक मैं झलक दे रहा हूँ। We need to identify and avoid damaging behaviors such as criticism, defensiveness, contempt, stonewalling. हमें ध्यान रखना है कि हम एक दूसरे की आलोचना नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, और ऐसी बातें नहीं करनी है कि हम उनके साथ बात ही पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। How many of you know what is stonewalling? कितने लोगों को पता है कि स्टोन वॉलिंग का मतलब क्या है? Okay, just to make it simple, stonewalling is like a emotional paralysis. स्टोन वॉलिंग का मतलब होता है ये एक भावनिक तौर पे जैसे लकवा मार गया है, ऐसा होता है। It's like when some situation occurs in the marriage where one spouse is not able to respond emotionally. तो ऐसा होता है कि ऐसा अगर कोई सिचुएशन आता है, परिस्थिति आता है जहाँ पे एक पति या पत्नी में से एक व्यक्ति ऐसा है जो भावना से भरे हुआ है, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, कुछ बता नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। It's like the first result takes place in the communication. The communication begins to stop. तो इसका जो असर होता है उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि आप दोनों की बातें बंद हो जाती है, बात करना बंद कर देते हैं। Or it decreases to such an extent that you're just using minimal words to communicate. और वो इतना कम हो जाता है कि आप कम से कम शब्दों में बात करने लगते हो। There is a slight difference between silent treatment and stonewalling. उसमें थोड़ा सा ही फर्क होता है, जहाँ पे हम एकदम बिल्कुल चुप हो जाते हैं और दूसरी तरफ से हम थोड़ा ही बात करते हैं। Silent treatments also happen between spouses. It's when one spouse wants to punish the other spouse. तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि पति या पत्नी दोनों में से एक व्यक्ति ऐसा समझता है कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं दूसरे को सजा दे रहा हूँ, पनिशमेंट दे रहा हूँ बात नहीं करके। So the intention of silent treatment is not right. तो इसका जो मेन इसके पीछे की जो भावना है, इसका जो उद्देश्य है, ये सही नहीं है। Whereas stonewalling is not with a bad intention. It's just like a lack of understanding and lack of handling the situation. दूसरी तरफ जो स्टोन वॉलिंग होता है, इसका जो उद्देश्य है ये सज़ा देना नहीं होता है, लेकिन ये इसलिए होता है कि दोनों के बीच में समझ की कमी है। Scriptures related to this is 2 Timothy chapter 2 verse 23. इसके लिए वचन है दूसरा तिमोथियुस का दूसरा अध्याय 23वां वचन, Titus 3 verse 9. तीतुस का तीसरा अध्याय 9वां वचन, Proverbs 17 verse 14. नीति वचन 17वां अध्याय 9वां वचन 14. और 14वां वचन। So these are scriptures that you can go through at home and try to understand what I'm trying to say. ये सारे वचन आप घर जाके पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि ये वचन क्या कह रहे हैं। Then we spoke about mistakes, that mistakes happen with everyone. फिर हमने बात की थी कि गलतियों के बारे में, कि गलतियां सबसे होती है। In every relationship, mistakes do happen. हर रिश्ते में गलतियां होती है, But when mistakes are repetitive, लेकिन जब गलतियां बार बार दोहराई जाती है then they are no longer called mistakes. तो उनको गलतियां नहीं कहा जाता, It's called rebellion. तो उन्हें बलवा कहा जाता है कि बलवा करते हैं, वो बात नहीं मानते। So the only solution for that is repentance and forgiveness. तो इसके लिए एक ही उपाय है, वो है मन फिराना और बदलना। Shama karna. मन फिराना और क्षमा करना। So through repentance and forgiveness, the relationship can be restored. तो मन का फिराना और क्षमा करना, इसके द्वारा बदलाव आ सकता है। The relationship between a husband and wife must involve respect and honor. तो पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता है उसमें आदर और रिस्पेक्ट या
Some- आदर और सम्मान होना चाहिए, थैंक यू। आदर और सम्मान दोनों होना चाहिए। Both have to guard the sanctity and sacredness of the relationship. दोनों ने शादी का जो पवित्रता है उसे बनाए रखना है। We also saw that Adam's job was to protect, to provide, to cultivate, and to preserve. तो हम देखते हैं वचन में आदम जो था उसकी जिम्मेदारी थी कि परिवार की रक्षा करना और परिवार को जो भी चीज़ की ज़रूरत है उसका पुरौठा करना। So this was not only in the Garden of Eden, but even after he was told to leave the garden, even then his responsibilities were the same. उसकी ये जिम्मेदारियां सिर्फ अदन की वाटिका तक सीमित नहीं थी। वो अदन की वाटिका छोड़ के जब वो बाहर गए वहाँ पे भी उसकी जिम्मेदारियां वही थी। He had to protect his family, he had to Us- provide for the family, and he had to cultivate the relationship and preserve for his lineage. और उसकी जिम्मेदारी ये थी उसे अपने परिवार की रक्षा करनी थी, परिवार के लिए खाना, सारी चीज़ों की ज़रूरत है वो लाना और परिवार में एक ऐसा वातावरण बनाना कि उसके द्वारा उसके जो आने वाली पीढ़ी है वो भी सुरक्षित रहे। We spoke a little bit about roles in marriage. तो हमने पिछले हफ्ते देखा था कि शादी में पति और पत्नी के जो अलग अलग भूमिकाएं होती है वो कौन सी होती है। Most of the time when we talk about spouse being a helper, we only imagine the wife as the helper. तो जब शादी में हम देखते हैं कि जो पत्नी है उससे मददगार कहा जाता है तो बहुत बार हम उसी बारे में सोचते हैं कि सिर्फ पत्नियां ही मदद करने वाली होती है, But even the husband is a helper. लेकिन जो पति है वो भी मदद करने वाला है। When God, when in the word of God it says it's not just helper, but it is a suitable helper. वचन में सिर्फ मददगार नहीं कहा है लेकिन सही मददगार कहा गया है। So suitable helper means equal, of equal standing. सही मददगार का मतलब होता है कि दोनों एक ही स्तर पे है। So Adam was first a helper to God on the earth. तो पहला जो आदम था वो परमेश्वर का मददगार था इस पृथ्वी पे। And then he was a helper in his own marriage. उसके बाद वो मददगार था अपने खुद की वैवाहिक जीवन में। It is the husband's responsibility to figure out how to provide for the family. तो ये पति की जिम्मेदारी है कि वो इसका प्रबंध करे कि वो अपने परिवार का पुरौठा कैसे करे। And the wife can be a helper in this responsibility. और उसकी पत्नी जो है वो इस जिम्मेदारी में उसकी मदद कर सकती है। So the husband may be working, maybe the only working member, or the husband and the wife both can be working. That's fine, that's the decision of the husband. तो ये पति पे निर्भर करता है, या तो सिर्फ पति ही जाके काम कर रहा है और कमा रहा है और जो पत्नी है वो घर संभाल रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पति और पत्नी दोनों भी काम कर रहे हैं, दोनों भी परिवार के लिए कमा रहे हैं। It is the wife's responsibility to figure out how to care and nurture for the family. और ये पत्नी की जिम्मेदारी है कि परिवार का ख्याल कैसे रखे और परिवार को अच्छा बना के कैसे रखे। The husband can also be a helper in this responsibility. और इस जिम्मेदारी में पति उसका मददगार बन सकता है। Galatians chapter 6 verse 2. गलातियों की पत्री 6 अध्याय 2 वचन। So we won't go there, but it just says that bear one another's burdens. It also applies to marriage where not one spouse is doing everything. You know, it should be equal. तो ये वचन कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ, मतलब हमें एक दूसरे का भार उठाना है, मदद करनी है। So now we'll continue from there. तो हम यही से हम आगे बढ़ेंगे। Yeah. Especially to those who are married and don't yet have children. यह मैं उनसे कहूँगा जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन जिनको अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। When a husband and wife get married, जब पति और पत्नी की शादी होती है the time period from the wedding till the birth of the first child is of utmost significance. तो जब से उनकी शादी होती है और जब तक उन्हें पहली संतान नहीं होती, इस बीच में जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। This is a time to cherish and enjoy your relationship. तो ये वो समय है जहाँ पे आपको अपने दोनों का जो रिश्ता है उसे और अच्छे से बनाना है और उसका पूरा आनंद उठाना है। You will need to figure out or explore what this marriage, this relationship thrives on.
तो ये इस समय में आप दोनों को सोचना है और देखना है कि ये रिश्ता आगे और अच्छे से कैसे बढ़ सकता है, how it can always be exciting, कि ये रिश्ता हमेशा आपको एक उत्साह देने वाला बना रहे, ऐसे आप कैसे बना सकते हो इसे। and that it should not be like a law-based relationship. और ये एक नियमों से बना हुआ रिश्ता नहीं होना चाहिए, It should be filled with grace. ये अनुग्रह से भरा हुआ होना चाहिए। This is the time where there are less distractions. ये वो समय है जहाँ पे आपके पास भटकाने वाली चीज़ें बातें बहुत कम होती है। Once the first child comes in, that's where the time and the effort is divided. जब आपकी पहली संतान आती है तो वहाँ पे आपका जो समय है और आपका जो मेहनत है वो विभाजित हो जाती है। That is why the time before the first child is a time where you really get to cherish one another's relationship. इसीलिए पहली संतान के होने से पहला जो समय होता है, यहाँ पे आप अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकते हो, आप अपने रिश्ते पे काम कर सकते हो। So make maximum use of it. तो इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है। Don't be in a hurry to have the first child. तो जल्दबाजी में मत रहिए कि आपको बच्चा जल्दी चाहिए, But be in a hurry to establish a stronger relationship. लेकिन इस बात के लिए हमेशा जल्दबाजी में रहिए कि आपको एक दूसरे के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना है। It doesn't mean that those who have already got children can't build their marriages, relationships. इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि जिनका पहला बच्चा हो चुका है वो अपनी शादी को और मजबूत नहीं बना सकते। It's just that there will be a struggle with time when once the children comes. इसका ये मतलब है कि जब पहला बच्चा आता है तो समय की कमी के कारण वो इतने अच्छे से वो नहीं कर पाते। So it's important to remember that oneness in marriage is the most important thing. यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि शादी में एक होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। And you don't do that after the child comes. You have to do it before the child comes. और ये शादी में जब बच्चा आ जाता है आपका, उसके बाद आप नहीं कर पाते, उसके पहले ही आपको ये करना है। Because the child will know how to exploit that weakness. क्योंकि जब आपका पहला संतान आएगा, वो बच्चा उसी बात का फायदा उठाएगा जब आप दोनों एक नहीं हो। So no matter how long before you have got married, no matter how long the boy and the girl knew each other, तो ये मायने नहीं रखता कि शादी होने से पहले जो लड़का लड़की जो भी पति पत्नी है वो शादी से पहले कितने सालों से एक दूसरे को जानते थे, ये मायने नहीं रखता। because living together with responsibilities is different from knowing each other's habits. क्योंकि साथ रह के जिम्मेदारियां निभाना और सिर्फ एक दूसरे और उसके बावजूद एक दूसरे की आदतों को जानना और सिर्फ एक दूसरे को शादी के पहले जानना, दोनों में बहुत फर्क है। You and your spouse's response to challenges, problems, opportunities can either strengthen or weaken the marriage. क्योंकि आप दोनों जो पति पत्नी बन जाते हो तो जो जिम्मेदारियां आती है उन जिम्मेदारियों को आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे आपका प्रत्युत्तर होता है, ये या तो आपकी शादी को मजबूत करता है या तो आपकी शादी को कमज़ोर बना देता है। See, the focus should be the relationship. तो ऐसे मामलों में जो आपका ध्यान है, सबसे ज़रूरी बात आपको एक दूसरे का जो रिश्ता है उसे ही समझना है। So if the relationship needs counsel, then seek godly counsel. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते को परमेश्वर के वचन के अनुसार की जो सलाह है, काउंसल है, उसकी अगर ज़रूरत है तो परमेश्वर के जनों के पास जाके आप वो सलाह ले सकते हो। Find out what are the things that as a couple, what are the shared hobbies that you both enjoy together. आप ये सब भी कर सकते हो कि आप ढूंढो कि कैसे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करने में दोनों को आनंद आता है, दोनों वो चीज़ एंजॉय करते हो। Make maximum use of that because both are enjoying that hobby or that activity. उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, क्योंकि वो आप ऐसी अगर आपको बात पता चलती है जो आप दोनों भी एंजॉय करते हो, उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। Like I know some people who love to travel, both the husband and the wife, and so they make trips almost every second or third weekend of the month. तो ऐसे पति पत्नी हैं जिनको घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना, तो वो दो तीन महीने में साथ में घूमने जाने का प्लान बनाते रहते हैं। Through that, the oneness improves. तो ऐसा जब वो करते हैं तो दोनों के बीच में जो एक होना है वो और गहरा होता है।
I myself love to travel, and even Sylvia enjoys traveling. So we have been to a lot of places. तो मुझे और सिल्विया सिस्टर दोनों को घूमना बहुत पसंद है, इसलिए हम बहुत सारी जगहों पे घूम चुके हैं. So before Grace came into our lives, we really got the opportunity to go to a lot of places. क्यों, इसलिए जब ग्रेस के आने से पहले हमें मौका मिला कि हम बहुत सारी जगहों पे साथ में घूमने जाए. It's not that we stopped after Grace came, but now that we have to take into consideration a lot of things before we make trips that are like long trips. तो ऐसा मतलब नहीं है अब कि ग्रेस के आने के बाद हमारी ट्रिप्स बंद हो चुकी है, लेकिन बच्चे के साथ जब हम बाहर जाने का प्लान करते हैं तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है. It's always the word of God says that two are better than one. वचन भी कहता है कि दो एक से बढ़कर होते हैं. Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10. सबोपदेशक चौथा अध्याय वचन 10वां. We'll read that verse. हम वहाँ जाएंगे. सबोपदेशक चौथा अध्याय वचन 10. Chapter 4 verse 9, 10. 9 और 10. Verse 9 says, two are better than one because they have a good reward for their labor. 9 वचन कहता है एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है. Verse 10 says, for if they fall, one will lift his companion. But woe to him who is alone, for when he falls, he has no one to help him up. 10वां वचन कहता है क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो. I have shared my testimony about how things happened in our life, and this verse really is proof of that. और मैंने ये भी बताया था कि हमारे जीवन में कुछ चीज़ें हुई थी और ये जो वचन है ये मेरे जीवन में हो चुका है. Because there was a time in our life when we were really tired of things that were happening around us. तो ऐसा एक समय आया था कि हमारे जीवन में जो हमारे आजू बाजू कुछ बातें हो रही थी उनसे हम थक चुके थे. To such an extent that both of us individually, separately, thought of even giving up our lives. तो ऐसा समय भी आया था कि उसकी वजह से इस हद तक हम थक चुके थे कि हमने अलग अलग हमारे ही मन में सोच लिया था कि हम हमारी जान दे देंगे. But praise be to God, when one was down, the other was there to lift the लेकिन other up. प्रभु की स्तुति हो कि जब हम में से एक कमज़ोर था, गिर जाता था तो दूसरा उसे उठाने के लिए वहाँ पे होता था. And that is how God protected our relationship. और उसी के द्वारा प्रभु ने हमारी शादी को बरकरार रखा. I didn't know this verse at that time. ये वचन मुझे पता नहीं था तब. But when I came to know of it later, then I was just remembering what happened with the situations that happened in our life. लेकिन जब मैं इस वचन पे आया तो मुझे याद आया कि हम मेरे जीवन में क्या हुआ था. So God protected our relationship by not doing something drastic or something crazy. तो इसलिए प्रभु ने हमारे शादी को बरकरार रखा और सुरक्षित रखा कि हमने कुछ ऐसा गलत कदम नहीं उठाया. We'll move further. It's very important to understand and respect personal space of each spouse. तो हम आगे जाएंगे. तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे पति और पत्नी एक दूसरे की जो निजी जगह होती है, एक स्पेस होता है, उसका भी ध्यान रखें. Because I understand that as a husband and wife, the initial excitement is there of doing everything together. मैं समझ सकता हूँ जब पति पत्नी नई शादी होती है तो दोनों में एक उत्साह होता है कि दोनों को बहुत सारी बातें साथ में करनी होती है. But don't overstep those boundaries. लेकिन ये जो एक दूसरे के जीवन की जो छोटी सी एक सीमा होती है, हमें उन्हें लांघना नहीं है. I would want to compare this situation with like a dance. तो ये एक परिस्थिति है जिसकी तुलना मैं करना चाहूँगा डांस से, नाचना जो होता है. When a couple dances together, जब एक शादीशुदा जोड़ा साथ में नाचता है, just take for example a dance like waltz. जो वॉल्स करके एक डांस का तरीका होता है, हम उसका उदाहरण लेते हैं. You can't be too far away from each other and dance the waltz. तो ये एक ऐसा डांस होता है कि जहाँ पे आप बहुत दूर रह के साथ में डांस नहीं कर सकते. But at the same time, if you get too close to each other, you will step on each other's feet. तो उसके साथ साथ
ऐसा भी नहीं होता है कि जब बहुत पास में रह के अगर आप नाचते हो तो एक दूसरे के पाँव पे पाँव दे सकते हो, and that dance will be very uncomfortable. और वो नाचना सही नहीं होता. So marriage is somewhat similar. You respect the other person, and you cannot steal their private or their personal space. तो शादी में यही होता है कि आप जब एक बन जाते हो तो आप एक दूसरे का जो पर्सनल स्पेस है उस पे आप हक नहीं जमा सकते. Where can we apply this? ये हम कहाँ पे लागू कर सकते हैं? Think about your time with God. सबसे पहली बात, आपका जो प्रभु के साथ समय है वो, When you are spending time with God, you cannot demand your spouse to always be there when you are praying. तो जब आप प्रभु के साथ अकेला समय बिता रहे हो तो आप ऐसा नहीं कह सकते, आप अपने जोड़ीदार को नहीं कह सकते कि तुम्हें भी आके मेरे साथ बैठना होगा. So it is such that it is an individual connection with God. So each one has to spend their own time with God. तो ये जो प्रभु के साथ किसी का रिश्ता होता है ये बहुत पर्सनल होता है, निजी होता है, तो उनका खुद का रिश्ता होता है प्रभु के साथ. But that does not mean that you should never pray with your spouse. तो इसका ये भी मतलब नहीं कि आप अपने जोड़ीदार के साथ कभी भी प्रार्थना नहीं करते साथ में. In fact, it is good and encouraging to be together as a family and pray to God. तो ये बहुत अच्छी बात होती है जब आप एक परिवार कह के आप एक परिवार के तौर पे साथ में आके प्रार्थना करते हो. But respect each one's personal space and let your spouse also have an individual relationship with God. It should not be dependent on you. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप एक दूसरे के जो निजी स्पेस है उसमें आप नहीं जा रहे हो, और इसके बावजूद दोनों का परमेश्वर के साथ अलग से रिश्ता है. We'll move ahead. When we are talking about boundaries have to be clearly defined in a marriage. जब हम सीमाओं की बात करते हैं तो ये सीमाएं हमें सही मायने में समझानी ज़रूरी है एक दूसरे को. So that anyone outside of that marriage relationship, इसकी वजह से अगर दोनों के अलावा कोई तीसरा अगर कोई है, they should not interfere or control the relationship. तो इसकी वजह से जो तीसरा जो होगा आप दोनों के अलावा कोई भी तीसरा आपकी शादी में बाधा नहीं डाल सकता या कंट्रोल नहीं कर सकता. A lot of this happens especially in a country like India where there are lots of interferences. तो ये बहुत ज़्यादा होता है हमारे देश में. Sometimes it can be parents, sometimes it can be siblings, sometimes it can even be friends. ये बहुत बार ये जो तीसरा व्यक्ति है ये कोई भी हो सकता है, ये माँ बाप हो सकते हैं, ये मित्र हो सकते हैं या रिश्तेदार हो सकते हैं. Interference is different and counsel is different. Counsel is different. ओके. दोनों ने शादी के बीच में आना, टांग अड़ाना ये अलग होता है, और सलाह देना ये अलग होता है. So a couple can take counsel from their parents, from their elders. तो जो जोड़ा है वो अपने माता पिता से या कलीसिया में जो बड़े लोग हैं उनसे सलाह आप ले सकते हो. But when it comes to making decisions, it should be the decision of the couple. लेकिन जब कोई निर्णय लेने की बात आती है तो वो निर्णय उस जोड़े का ही होना चाहिए. Like planning for the child or planning for your space where you're going to live, all these things, decisions should be made by the couple. इसका मतलब अगर आप बच्चे के लिए तैयारी कर रहे हो तो बच्चा करना है ये निर्णय भी आपका होना चाहिए, या फिर कहाँ पे आपको रहना है ये निर्णय भी आपका खुद का होना चाहिए. I remember that the house that I grew up was very small. मुझे याद है जिस घर में मैं बड़ा हुआ वो बहुत छोटा था. And once I thought about getting married, I thought that it will be too inconvenient for me to get my wife in that house. तो जब मैंने सोचा कि अब शादी करने का समय आ गया तो मैंने सोचा कि अगर मैं शादी करके मेरी पत्नी को लाऊंगा तो इस घर में रहना सही नहीं होगा. So what I did is I rented a place very close to where my parents were living. तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पास में ही एक दूसरा घर किराए पे लिया. And right from the time we got married, we started living in a rented place. और जिस समय हमारी शादी हुई उसी समय से हमने उस किराए वाले घर में रहना शुरू किया. Over the months, it was possible for us to buy a house. तो कुछ महीने बाद हम उस स्थिति में आ गए थे कि हम एक घर खरीद सकते थे. And we did that and we shifted to our own house. और हमने वो घर खरीदा और हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए. Now I could have stayed with my parents.
तो अब मैं अपने माँ बाप के साथ रह सकता था। But as I mentioned, the room was so small that it would be a little uncomfortable for all of us to enjoy the place. तो जैसे मैंने कहा कि वो घर इतना छोटा था कि हम सबको साथ में रहना वहाँ पे मुमकिन नहीं था। And also, uh, I learned that by staying separately but nearby, it was a good decision that I took. तो मुझे बाद में समझा कि साथ में रहने से अच्छा है पास में अलग अलग रहना सही निर्णय था। Because there are lots of matters that can cause conflicts. Like the number one reason usually is the kitchen. तो कुछ बातें थी जिनसे झगड़ा होने की संभावनाएं थी, तो उनमें से एक बात आती है किचन। So I didn't want all that, so that's why I chose let's stay on rent. तो मुझे वो नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं किराए के घर में रहूँगा। And I was really blessed because through this we had a peaceful time. और ये बहुत आशीर्वादित हुआ क्योंकि इसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत शांति थी। So as a couple, you need to make such conscious decisions as to what is the best thing for your relationship. इसीलिए एक जोड़ा होने के नाते आपको ऐसे कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे आपको ये समझे कि इसके द्वारा हमारा शादीशुदा जीवन आशीर्वादित होगा, शांति से भरा होगा। Fortunately, my parents and even Sylvia's mother didn't interfere in our relationship. अच्छी बात ये थी कि ना मेरे माता पिता ने मेरी शादी में दखल दी, ना ही सिल्विया के माता पिता ने हमारी शादी में दखल दी। So that was what really worked well for us. तो इसकी वजह से हमें बहुत आसानी हुई और हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें हुई। But if there is interference in the marriage relationship, लेकिन अगर शादी में कुछ बाहर के लोग दखल देते हैं, then as a couple we need to point it out, politely point it out and deal with it, rather than allowing that interference in your marriage. तो ऐसे मौक़ों पे जब भी आपको हमें दिखता है कि तीसरा व्यक्ति कोई हमारी शादी में दखल दे रहा है, तो हमें बहुत आदर के साथ ये बात उन्हें बतानी है कि ये हम नहीं अलाउ कर सकते और हमारा जो निर्णय होगा वो हम ही लेंगे। Because if you don't deal with it, it will be a lifelong interference. क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो बाहर के लोग आपकी शादी में दखल देते रहेंगे और ये चलता रहेगा। Sometimes even after having all these boundaries, there can be a threat to the relationship. बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि इतनी सारी हमारी अगर हमने बाउंड्रीज बना के रखी है, सीमाएं बना के रखी है बाहर के लोगों के लिए, लेकिन फिर भी उनको ये हमारी शादी के लिए सही नहीं होगा। So how does that threat come in? Sometimes it is misunderstanding, miscommunication, and sometimes really it is a threat. ये हमारी शादी के लिए खतरा कैसे बन सकती है? कभी कभी ये सीधे तौर पे खतरा हो सकता है या कभी कभी ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, And sometimes it is really a threat. और कभी कभी सचमुच में खतरा हो सकता है। So the only way to restore is through an open and honest communication. तो इसे सही करने का एक ही तरीका होता है कि हम साफ साफ बात करें इसके बारे में, That becomes the topmost priority at that time. क्योंकि उस समय में करने के लिए ये सबसे ज़रूरी बात होती है। Remember that forgiveness is the means of restoration. क्योंकि आपको पता है कि याद है होगा कि जो क्षमा करना होता है इसके द्वारा ही चीज़ें सही होती है। But also remember that repetitive mistakes are not mistakes, they are rebellion. और ये भी हमें ध्यान रखना है कि बार बार किए जाने वाली गलती नहीं होती, ये एक बलवा होता है। So it's important to have godly mentors. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक परमेश्वर के लोग हो जो आपके शिक्षक हो, आपके गुरु हो, Where you can keep accountability and helps you to steady your ship. जहाँ पे आप उनके लिए एक अकाउंटेबल हो, आपको उन्हें आप जवाबदेह हो कि आपको उन्हें जवाब देना पड़ता है। Because when accountability comes in, then we are actually making ourselves vulnerable. जब जवाबदेही आती है किसी भी रिश्ते में तो हम खुल जाते हैं, हम कोई भी बात छुपा नहीं सकते। But even though you are becoming vulnerable, you are actually taking a wise step to avoid any damage being done. तो जब आप खुद को ऐसे खुला कर रहे हो अपने गुरु के लिए या अपने शिक्षक के लिए, तो इससे आप अपने जीवन में, अपने शादी में आने वाले जो खतरे हैं, जो
नाश जो होने वाला था उससे आप बचा रहे हो। James 5:16 says, "Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed." याकूब का 5वां अध्याय 16वां वचन जो कहता है, जेम्स 5:16, 5:16. याकूब 5:16 कहता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। I'm talking about when there is a threat to the marriage relationship. मैं ये उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ जब आपकी शादी को खतरा है। So it's important to confess. If you have trespassed, then it's important to confess to one another with an open heart. अगर आप दोनों में से किसी ने कोई गलती की है, पाप किया है, तो खुले दिल से इसकी कबूली करना जरूरी है। It is also important for the other spouse to forgive. और ये भी उतना ही जरूरी है कि शादी में जो जिसको कबूली दी गई है, जिसके सामने कबूल किया गया है, वो व्यक्ति भी क्षमा करे। Then there can be restoration. तब जाके चीजें सही होगी, ठीक होगी। If at the first mistake, if there is talk about divorce, then that's definitely heading in the wrong direction. अगर एक गलती होने से ही वहां से तलाक की बात करने लग जाते हो तो ये इसका मतलब है चीजें सही दिशा में नहीं जा रही है। Because remember, last time I shared that God hates divorce. पिछले बार हमने देखा था कि परमेश्वर को तलाक से नफरत है। And if we do something which God hates, then we know where we stand. और अगर हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे प्रभु घृणा करता है, प्रभु नफरत करता है, तो हमें पता होना चाहिए हम सही नहीं है। Continuing further with relationships, it's important to also have spiritual intimacy. तो रिश्तों में हम आगे बात करेंगे तो ये भी उतना ही ज़रूरी है कि आत्मिक तौर पे हम एक दूसरे के करीब रहे। So as a husband, the responsibility falls on him that, you know, he has to make sure that there is spiritual growth of his spouse. तो ये भी उतना ही ज़रूरी होता है कि पति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी की आत्मिक बढ़ोतरी पे ध्यान दे। Also, when you're talking about a family, then it's the husband's responsibility to take care of the family's spiritual growth. तो जब हम परिवार के तौर पे देखते हैं तो ये जो पति है उसकी जिम्मेदारी होती है कि पूरे परिवार की आत्मिक बढ़ोतरी पे उससे ध्यान देना है। That's why encourage praying together, studying the Bible as a couple or as a family, and discussing spiritual journeys. इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक परिवार मिलके प्रार्थना करें, एक परिवार मिलके या दोनों पति और पत्नी मिलके वचन का स्टडी करें, वचन पढ़े और दोनों एक दूसरे की जो आत्मिक जर्नी है, आत्मिक सफ़र जो उन्होंने किया है अब तक, उसके बारे में बातें करें। And through this spiritual, actually the benefit comes more from when you try to be spiritually one. और इससे फ़ायदा तब होता है जब आप आत्मिक तौर पे भी एक स्तर पे एक बनने की कोशिश करते हो। There is, if you focus on the spiritual aspect, जब आप आत्मिक बातों पे, आत्मिक पहलू पे ध्यान देते हो, you will find an attraction from the physical aspect also. तो इसकी वजह से आप एक दूसरे से शारीरिक तौर पे भी आकर्षित होने लगोगे। And also in the soulish realm. और वैसे भी आप प्राण के तौर पे भी एक दूसरे से पास आने लगोगे। So the key to getting more and more closer and more one is start from the spiritual side. तो अगर एक दूसरे के साथ आपको एक होना है तो आत्मिक तौर पे आपको एक होना पड़ेगा। A couple that is excited about prayer and about God, अगर कोई ऐसा जोड़ा है जो परमेश्वर के लाइक प्रार्थना के बारे में, वचन के बारे में अगर उत्साहित रहते हैं साथ में, then even though there may be differences in their soul or in their body, yet they can become one. तो अगर उनके शारीरिक तौर पे या प्राण पे अगर कोई फर्क है, दोनों के बीच में कोई अलगाव है, फिर भी वो एक हो सकते हैं। So it's important to start from the spiritual side first, right? Even if let's say if somebody is intending to get married, then first focus on the spiritual side. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें आत्मिक तौर से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको शादी करनी है तो वो दोनों भी आत्मिक तौर से शुरुआत कर सकते हैं कि आत्मिक तौर पे वो सेम स्तर पे कैसे आए।
Because if you don't start from the spiritual side, you start from the, let's say, the flesh. अगर आप आत्मिक ओर से शुरुआत नहीं कर रहे हो और आप शरीर की ओर से शुरुआत कर रहे हो, See, the flesh, you may get attracted to the flesh. तो जो शरीर है वो शारीरिक तौर पे हम एक दूसरे के प्रति शारीरिक तौर पे आकर्षित हो सकते हैं, But over a period of time, you will get tired of desiring the same things in the flesh. तो कुछ समय बाद ऐसे हो सकता है कि आप उस शारीरिक आकर्षण के द्वारा आप मतलब ऐसा समय आएगा कि आप एक दूसरे से आकर्षित होना बंद हो जाओ, Because the emptiness is not actually in the flesh, but it's in the spirit. क्योंकि जो खालीपन है वो शरीर में नहीं है, वो आत्मा में है. So it's important to first deal with that. Get spiritually attracted if you already have somebody whom you are intending to get married to, or if it is about your spouse, then first seek that spiritual unity. इसीलिए आत्मिक तौर पे एक दूसरे से आकर्षित होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको शादी करनी है तो शरीर को छोड़ के आत्मिक बातों के बारे में अगर आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हो तो इससे आप एक अच्छी शुरुआत कर पाओगे. Let's say, let's just suppose that there is somebody who is not physically attracted to his wife. ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने पत्नी के प्रति शारीरिक तौर पे आकर्षित नहीं होता है. We are just assuming, okay, over here. हमें सिर्फ समझ रहा है, एक उदाहरण हम देख रहे हैं. But when this man starts to focus on God, लेकिन जब ऐसा व्यक्ति परमेश्वर पे ध्यान लगाना शुरू करता है the desires of his heart is being fulfilled by God. तो उसके हृदय की जो इच्छाएं होती है वो परमेश्वर पूरा करने लगते हैं. Now when his desires are being fulfilled by God, he is already from the inside feeling satisfied and peaceful. तो जब परमेश्वर उसकी इच्छाओं को पूरे करने लगते हैं तो वो व्यक्ति पूरी तरह से अंदर से संतुष्ट खुश महसूस करता है. So he is not seeking this pleasure or this peace from his spouse. तो वही संतुष्टि वही खुशी वो अब अपने पत्नी से उम्मीद नहीं करता. But what God's love does in that person is he makes that person to start loving everything. तो अब उस व्यक्ति में परमेश्वर ऐसा काम करते हैं कि वो व्यक्ति जो संतुष्ट है खुश है वो दूसरों के लिए संतुष्टि देने लगता है. Yeah, he starts loving people in general. वो लोगों से प्रेम करने लगता है. And the first person he will begin to love is his spouse. और पहला व्यक्ति जिससे वो प्रेम करना शुरू करेगा वो होगा उसकी पत्नी, उसका जोड़ीदार. So even though there is no attraction physically yet, because you started off with going and getting satisfied in your spirit through God, that is why that leads to a fleshly satisfaction as well. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भले ही वो शारीरिक तौर पे एक दूसरे से आकर्षित नहीं हो रहे थे, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर पे निर्भर रहा, परमेश्वर से उसने वो संतुष्टि वो खुशी पाई. अब क्योंकि वो संतुष्ट है खुश है इसलिए वो अब एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो पा रहे हैं. Just remember that triangle that I think many of us have shown, that the husband, the wife and God is on top. आप में से कई लोगों ने वो त्रिकोण देखा होगा जहाँ पे तीन लोग दिखाई देते हैं, पति पत्नी और परमेश्वर. Now as you get closer to God, each spouse, जब पति और पत्नी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं they actually start getting closer to each other. तो वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं. So that's very simple to understand, and that's exactly what happens when we get closer to God. We begin to love our loved ones. तो यही होता है, जब हम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तो हम परमेश्वर के भी करीब आते हैं और हम एक दूसरे से प्रेम कर पाते हैं. I'm not talking about the earthly love, I'm talking about God's love. मैं धरती के प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ. Because God's love is what is really satisfying. क्योंकि सिर्फ परमेश्वर का ही प्रेम है जो पूरी तरह से आपको संतुष्ट कर सकता है. We know that about love. I just want to reference this, that there is a love which is called brotherly love, which is phileo in Greek. प्रेम के भी काफ़ी प्रकार होते हैं. तो एक प्रकार का प्रेम होता है जिसका नाम है फिलियो, जो भाईचारे वाला प्रेम होता है. There is a love between a man and a woman, that's called eros. और एक स्त्री और पुरुष पति और पत्नी में जो प्रेम होता है उसे इरोस कहा जाता है. But there is a higher level of love called agape love, which is God's love. और उससे ऊपर सबसे ऊपर जो प्रेम होता है उसे कहा जाता है अगापे. वो प्रेम होता है परमेश्वर का प्रेम.
that love, when we receive, we are so filled that we want to share it with others. वो प्रेम ऐसा प्रेम होता है जब आप उस प्रेम से भर जाते हो तो वो प्रेम आपको विवश करता है कि आप दूसरों से भी वो प्रेम बांटो। And it is that love that everyone is actually seeking. और यही वो प्रेम है जिसके लिए दुनिया के सारे लोग ढूंढ रहे हैं। But it cannot be fulfilled by filio and eros. लेकिन ये प्रेम की पूर्ति फिलियो या इरोस, ये दो प्रकार के प्रेम से नहीं हो पाएगी। It is only fulfilled by God's agape love. इसकी पूर्ति केवल परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है उसके द्वारा ही हो सकती है। So you may see a person or a couple or a family who is very rich, who is very prosperous, who has everything that they want, they have a happy family, but yet there is emptiness in that person's life. तो आप ऐसे लोग भी देखते होंगे जीवन में कि जो जीवन में उनके पास सब कुछ है, वो सफल है, उनके पास पैसा है, दौलत है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक खालीपन है। And that is because it is he is missing God's love. That's why that is the situation. क्योंकि उनके पास परिवार का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, लेकिन कुछ खालीपन जो है वो परमेश्वर के प्रेम से ही भरा जा सकता है। But there are no qualifications for receiving God's agape love. लेकिन इस प्रकार का अगापे प्रेम जो है उसके लिए कोई सीमा नहीं है, ना ही कोई ऊपरी सीमा है। The poor, the rich, everyone can receive God's love. ये एक ऐसा प्रेम है जिससे हर कोई पा सकता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। I also wanted to speak about. I had mentioned last time that isolation is not God's plan. मैंने पिछली बार कहा था कि जो अलग होके रहना है, अकेला रहना है, आइसोलेशन, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Because when we isolate ourselves from others, then we are allowing, we are basically pushing away godly counsel. जब हम खुद को अलग करते हैं तो हम जो परमेश्वर से आने वाली जो सलाह होती है हम उससे नकारते हैं, उसे दूर कर रहे हैं। When we isolate ourselves from godly counsel, we are actually inviting the enemy to work in us. जब हम खुद को अलग करते हैं, परमेश्वर के लोगों से अलग करते हैं, तो हम शैतान की जो चीज़ें हैं उनको हम हमारे जीवन में जगह दे रहे हैं। So no matter what a person thinks, like especially there are some people who say I don't want to get married at all. कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। Not because he wants to work for God. ये वो इसलिए नहीं कह रहे कि उन्हें परमेश्वर के लिए काम करना है। But probably because he's afraid of responsibilities, or probably he's afraid of how he's been seeing the situation around him, around maybe his family members, and that's why he doesn't want to get into marriage. ये इसलिए भी हो सकता है कि शायद उन्होंने अपने आजू बाजू ऐसी शादियां देखी है जो सफल नहीं है, या फिर वो व्यक्ति शादी के साथ आने वाली जो जिम्मेदारियां होती हैं उनसे डर रहा है। But there is a beauty that God has brought out in marriage. लेकिन शादी में एक सुंदरता है जो परमेश्वर बाहर लाते हैं, which Paul calls as a mystery. जिसे प्रेरित पौलुस एक रहस्य कहते हैं। Because as we start experiencing marriage, क्योंकि जैसे हम शादी का अनुभव लेने लगते हैं, it is you becoming one with another. तो ये आप एक होने लगते हो दूसरे के साथ, and that is what God wants you to experience. और यही एक होना परमेश्वर की इच्छा है कि आप अनुभव करो। And the best way on earth to do it is through marriage. और पृथ्वी पे ये करने का सबसे उत्तम तरीका होता है विवाह। So through that we start experiencing what it is for two to become one. इसीलिए हम शादी के द्वारा ये जानते हैं, अनुभव करते हैं कि सही मायने में एक होने का मतलब क्या होता है। And if we have not experienced this, it doesn't mean that marriage is necessary for everyone. There can be oneness achieved, but it will only happen through God. तो अगर ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति को शादी करना ज़रूरी है, लेकिन एक होना आप अनुभव करोगे परमेश्वर के द्वारा ही। It's easier to become one with someone whom you can see. ये बहुत आसान है एक होना उसके साथ जिसे आप देख सकते हो। But when you are totally relying on faith, then you cannot see that means you cannot see God, and you are aiming to become one with God. It is a little more difficult, I would say. तो जब आप परमेश्वर के साथ एक होने की कोशिश करते हो तो आपको विश्वास से वो करना पड़ता है, क्योंकि आप परमेश्वर को
देख नहीं पाते हो, तो विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर से एक हो सकते हो। So what marriage does is तो शादी की वजह से क्या होता है? that marriage gives you a perspective of what it is to become one. तो शादी आपको एक समझ देती है, एक दृष्टिकोण देती है कि एक होना क्या होता है। It gives you opportunities to care for one another. तो ये आपको मौका देती है कि आप एक दूसरे के बारे में ख्याल रखो एक दूसरे का, And through that, you become selfless. और ये करने के द्वारा आप निस्वार्थी बनने लगते हो। If you are as an individual, you don't get that opportunity to become selfless as much. जब आप अकेले होते हो तो आपको निस्वार्थी बनने का मौका उतना नहीं मिलता। You might be a selfless single person, but the opportunities are like 100-fold when it comes into a marriage where you get to become selfless. ऐसा भी हो सकता है कि आप शादीशुदा नहीं हो लेकिन आप निस्वार्थी हो, लेकिन जब आपकी शादी होगी तो आपके पास सैकड़ों ऐसे मौके आएंगे जिसके द्वारा आप निस्वार्थी बन पाओगे। Enter the children and you will have 1,000 more opportunities to become selfless. और जब शादी के बाद जब बच्चे आते हैं आपके जीवन में, तो निस्वार्थी होने के हजारों मौके आते हैं। So I want to move on to talking about children. तो मैं अब बात करूंगा बच्चों के बारे में। So children are the fruit of a marriage. तो जो बच्चे होते हैं वो शादी का फल होते हैं। The relationship between the husband and the wife तो will influence the nature of the child. तो पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है उसका प्रभाव उनके बच्चों पे पड़ता है। Right from the moment the seed is planted. उसी समय से जब से वो बीज बढ़ना शुरू होता है। So the woman receives the seed and the seed is there. Right from that very instant, the husband and wife's relationship is starting to take effect. तो जब स्त्री उस बीज को स्वीकारती है और वो बीज के द्वारा बच्चा जन्मने लगता है, उसी समय से पति और पत्नी के रिश्ते पे प्रभाव पड़ने लगता है। So in short, we can say that pregnancy is the beginning of parents' influence on the child right from the moment the seed is planted. इसका मतलब गर्भ अवस्था में ही दोनों का उस बच्चे पे प्रभाव पड़ना शुरू होता है। In what way does the parents influence the child? माता पिता का बच्चे पे प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है? They are feeding that seed emotions, attitudes, behaviors. कि वो उस बीज को अपने भावना से अपने रवैये से वो अपने बच्चे को बढ़ा रहे हैं। In short, they are feeding and developing the character of the child. इसका मतलब यह है कि वो उस बच्चे का जो चरित्र है वो माता पिता ही बनाते हैं। And the child receives it. It may not be able to speak, it may not be able to display anything, but it is receiving. बच्चा शायद बता नहीं पाता है कि मैं उससे स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन बच्चा उससे स्वीकार करके उसके ढांचे में ढलने लगता है। A child in the womb is always in receiving mode. जो गर्भ अवस्था में जो बच्चा होता है वो हमेशा पाने के लिए तैयार रहता है। So make it a point to bless that child who is in the womb. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो गर्भ में जब बच्चा है तो आपको उससे आशीर्वाद देते रहना है। Lay hands and pray for the child. आपको उस पे हाथ रख के प्रार्थना करना, घोषणा करना है। And this doesn't have to stop after the birth of the child. और ये करना बच्चे का जन्म होने के बाद भी जारी रखना है। So you can continue to lay hands, pray for your child, even though the child may be 1 month old or 10 months old or even 10 years old. तो आपको बच्चे के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देना जारी रखना है, चाहे बच्चा 1 महीने का हो, 10 महीने का हो, 10 साल का हो। Through that, the child is just receiving your blessing. उसके द्वारा वो बच्चा आपने दिया हुआ आशीष पा रहा है। I have shared many times about how when I was born, the financial situation was not good in my family. तो मैंने बहुत बार ये बताया है कि जब मेरा जन्म हुआ था तो हमारे परिवार की आर्थिक परिस्थिति सही नहीं थी। But I remember one day when my father, what he did was he put his hand on my head and he blessed me. लेकिन एक दिन मुझे याद है मेरे पिता ने उनका हाथ मेरे सर पे रखा था और मुझे आशीर्वाद दिया था। And
at that time we were still struggling financially, but he blessed me that, you know, I will not face the kind of problems that we were going through at that time. लेकिन मेरे पिता ने जब मेरे सर पे हाथ रखा तो हमारे परिवार की आर्थिक परिस्थिति सही नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे आशीष दिया था कि तेरे जीवन में तू वो परिस्थिति नहीं देखेगा जो हम देख रहे हैं। That blessing is etched into my memory. तो ये आशीष आज भी मुझे याद है And I believe that God has answered that prayer. और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने उस आशीष का उत्तर दिया है And I have not seen lack after that. और उसके बाद मेरे जीवन में कभी कमी घटी नहीं देखी। So bless your child, speak and declare words of faith. इसलिए आपको अपने बच्चे को आशीषित करना है, उसके ऊपर आशीष बोलना है, अच्छे शब्द बोलने हैं। As the child grows, set a boundary even for the child. जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे के लिए आपको कुछ सीमा बनानी है These boundaries are for godly values. और ये जो सीमाएं हैं ये परमेश्वर के मूल्यों के लिए है। If this boundary of godly values is crossed, अगर ये सीमा बच्चा लांघता है then the child needs to be disciplined. तो उस बच्चे को ताड़ना देना बहुत ज़रूरी है। So sometimes, like, Grace has never given us trouble when we have been raising her. तो ग्रेस ने हमें उतना परेशान नहीं किया जब हम उसे बड़ा कर रहे थे, परवरिश कर रहे थे उसकी। But I have been teaching her godly values one by one. लेकिन मैं उससे परमेश्वर की जो वचन है, उसके जो मूल्य है वो सिखाता रहता हूँ। So one day when she did not tell the truth and she spoke a lie, तो जब उसने एक दिन मुझसे झूठ बोला, सच नहीं बताया उसने, I told her that I was very unhappy. तो मैंने उससे कहा कि मैं इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। I did not need to spank her or hit her, मुझे उसे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, but I told her that if you speak what is not the truth, I will not be able to trust you. लेकिन मुझे उससे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम पे विश्वास नहीं कर पाऊंगा। And if I don't trust you, then I cannot give you anything, any responsibilities. और अगर मैं तुम पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा तो मैं तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दे पाऊंगा। And you will want that after a certain age. और ये तुम्हें जिम्मेदारी पाने की ज़रूरत तुमको पड़ेगी कुछ समय बाद। She took some time to reflect on what I said, उसने कुछ समय लिया इस वाक्य पे सोचते हुए, but I have noticed that of late she has not been lying. और मैंने अब ध्यान दिया, मुझे महसूस हुआ कि अब वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती है। So I am able to trust her now. Like when things happen with her friends and all, I am able to trust her word. तो अब ऐसा समय है कि अगर कुछ बातें मुझे पता चलती है तो जो वो मुझे बता रही है तो मैं उस पे विश्वास कर पा रहा हूँ। I will still find out what other children have said, but I will place the greater trust in her because she has learned how to value the truth. तो मैं दूसरे बच्चों की भी बात सुनता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, उस परिस्थिति में क्या हुआ था, लेकिन जब ग्रेस मुझे कुछ बताती है तो उस पे मुझे थोड़ा ज़्यादा विश्वास होता है क्योंकि ग्रेस अब सीख चुकी है कि सच की कीमत क्या होती है। So as parents, we need to teach that to our children. तो एक माता पिता होने के नाते ये बात बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। And whenever, as parents, whenever you see something ungodly creeping up, तो एक माता पिता होने के नाते जब आपको कोई बात ऐसी दिखती है जो परमेश्वर का चरित्र नहीं है, ऐसी कोई बात आपके बच्चे में आपको दिखती है, and mind you, these things will creep up. और ये बात आपको बहुत डरा सकती है, But it is not because of you, but it is because she or he is mingling with the world. और इसके जिम्मेदार आप नहीं हो, ये इसलिए होता है क्योंकि वो बाहर जाके दुनिया में घुल मिल रही है। So that ungodly thing might come from the world. और इसी वजह से ये जो अदैवी चीज़ है ये वहाँ से आ रही है उसके As अंदर। parents, we need to be alert and know how to deal with that ungodly behavior. इसलिए अब माता पिता होने के नाते हमें इन बातों को कैसे संभालना है ये आना चाहिए। So as parents, we need to start teaching important character traits. इसलिए माता पिता होने के नाते हमें बच्चों को ये सिखाना है कि जो चरित्र जो है, अच्छा चरित्र क्या होता है। Like obedience, timeliness, cleanliness,
politeness, generosity, stewardship. कि आज्ञा मानना, समय का पालन करना, Cleanliness, साफ सफाई रखना, politeness, नम्र रहना, generosity, कि उदार रहना, and stewardship. और अच्छा भंडारी बनना, अच्छा मैनेज करना। Right from a very young age. ये सारी बातें हमें काफ़ी कम उम्र से उनको सिखाना ज़रूरी है। We also need to teach our children how to make godly and wise decisions. और हमें हमारे बच्चों को ये भी सिखाना है कि वो परमेश्वर के नज़र से सही ऐसे निर्णय कैसे ले। So we need to also start entrusting responsibilities to children from a very young age. इसीलिए ये हमें करना है कि हमारे बच्चों पे छोटी उम्र से ही हम जिम्मेदारी डालना शुरू करें। Like when Grace was 2 years old, 3 years old, and she used to play with her toys, we used to help her to clean up the toys. तो जब ग्रेस 2 साल की थी तो खिलौनों के साथ खेलती थी, लेकिन खेलने के बाद जब सफाई करने का वक्त आता था तो हम उसकी मदद करते थे सफाई करने में। But after 2 or 3 years after that, we just completely put it as her responsibility. She needs to make sure that her things are in the right place. लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद हमने वो जिम्मेदारी पूरी तरह से उस पर डाल दी कि ये सब साफ करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। And then she learnt it, and it took time, but she learnt it, and now she does it by herself. इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन कुछ समय बाद वो पूरी तरह से सीख गई और अब वो उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाती है और करती है। Remember that spoon feeding is only for babies. आपको ये याद रखना है कि चम्मच से खाना खिलाना सिर्फ बच्चों के लिए होता है। And I'm not talking about food over here, मैं खाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, but I'm talking about everything in life. We can't just be spoon feeding the children. और ये मैं कह रहा हूँ कि जीवन में हर एक बात आप बच्चों को नहीं डायरेक्टली नहीं दे सकते। Of course, food, in matters of food also, they need to stop being spoon fed. और खाने के मामले में भी हम देख सकते हैं कि उनकी वो आदत टूटनी नहीं चाहिए जब हम उन्हें खाना खिला रहे। But when you're talking about other aspects, like sometimes we tell Grace to wipe the table, wipe the chairs, take a cloth and wipe it, or clean the glass, these kind of things. लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ कि एक समय बाद हमें उससे सिखा दिया कि अगर हम उससे कहते कि ग्रेस आप टेबल साफ कर दो या कुर्सी साफ कर दो या कांच साफ कर दो, Keep your shoes in order, keep it in the right place, keep your books in the right place, keep your toys in the right place. खुद के जूते जो है वो सही जगह पे रखो, खुद की किताबें सही जगह पे रखो। It's important for me to teach her this right now. ये बहुत ज़रूरी है कि मैं उसे ये बातें अभी सिखाऊं, Once she's 18 and 20, then she will never have the habit. क्योंकि जब वो बड़ी होगी 18 साल की होगी, अगर मैंने अभी नहीं सिखाया तो उस समय में उसको वो आदत ही नहीं होगी। So she will learn how to be disciplined and organized right from now. इसीलिए वो डिसिप्लिन में रहना या सही चीज़ सही जगह पे रखना, ये सारी आदतें उसमें अभी आ सकती है। Children also need a listening ear. बच्चों को एक सुनने वाले कान की भी ज़रूरत होती है। If both parents are overloaded with work, they come late, they don't have time for the child, then who will the child talk to? अगर माता और पिता दोनों काम पे जाते हैं और दोनों काम से वापस आने के बाद थके हुए होते हैं, बच्चे की बात नहीं सुनते हैं, तो बच्चा किससे बात करेगा? A heart-to-heart talk is needed for every child. एक बच्चे से दिल से बात करना और उसकी बातें भी सुनना, ये एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। So the child needs a listening ear. इसीलिए बच्चों को भी एक सुनने वाले कान चाहिए होते हैं। Sometimes Grace gets into this mode of just asking questions. बहुत बार ऐसा होता है कि जो ग्रेस है वो बहुत सवाल पूछने लग जाती है। So one day when I was driving her to school, when I was taking her to school, तो एक दिन जब मैं उसे स्कूल लेके जा रहा था, on the way we picked up another teacher. तो जो एक शिक्षक थे, उस ग्रेस के शिक्षक थे, उनको भी हमने कार में ले लिया। So she was sitting at the back seat, तो वो पीछे बैठी थी and Grace was next to me, और ग्रेस मेरे बाजू में बैठी थी। and she was like, it was a daily habit. Every morning, like as I was driving her to school, she would ask me lots of questions. और ये हमारी रोज़ की बात है कि जब मैं उसे स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो वो मुझे बहुत सारे सवाल पूछती है। So it was a habit, like either we will sing songs or we will ask questions. तो हमारी ये आदत थी कि या तो हम गाना गाएंगे कार में या तो वो सवाल पूछेगी और मैं उसे जवाब दूंगा। So this teacher was just listening to all the questions that Grace was asking me, and I was trying to answer.
तो ये पीछे जो शिक्षक बैठी थी वो सुन रही थी कि ग्रेस क्या सवाल पूछ रही है और ब्रदर क्या जवाब दे रहे हैं. So then she just asked me, she's asking so many questions, don't you get tired? तो शिक्षक जो थी उन्होंने पूछा कि ये बहुत सारे सवाल पूछ रही है, आप थक नहीं जाते हो क्या जवाब देते हुए? So I told her I'm happy that she's asking questions because I can answer her. I may not be able to answer every question, but at least I'm giving her a listening ear. तो मैंने उनसे कहा कि मुझे खुशी होती है जब वो सवाल पूछती है. शायद हर एक सवाल का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं उसके लिए वो सुनने वाला कान बन रहा हूँ. So let your children ask questions. तो आपके बच्चों को सवाल पूछने दो. You know what is happening when they're asking questions? क्या आपको पता है क्या हो रहा है जब वो सवाल पूछ रहे हैं? They're using their imagination. कि वो अपनी कल्पना को काम में ला रहे हैं. So do not discourage children from asking questions. इसलिए बच्चों को मत रोकिए सवाल पूछने से. Even if their questions seem silly or crazy, उनके सवाल शायद मूर्खता वाले लग सकते हैं. no, God will give you the wisdom how to answer it. प्रभु आपको बुद्धि देगा कि आप उसका जवाब कैसे दो. But sometimes even I learn from her questions. लेकिन बहुत बार ऐसे भी होता है कि उसके सवाल से मुझे सीखने मिलता है. And that's really something that makes me never to stop her from asking questions. और इसी वजह से मेरा मन नहीं करता कि मैं उसे सवाल पूछने से कभी भी रोकूं. So important to keep some time aside for your child where the child can just talk or just ask questions and you can just give answers. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे बच्चे के लिए एक ऐसा समय निकाल के रखें जहाँ पे सिर्फ वो सवाल पूछे और हम उसको जवाब दें. When they have reached a certain age, जब वो एक ऐसे उम्र पे पहुँच जाएंगे, like I believe Grace has reached that kind of an age, तो ग्रेस भी अब उस उम्र में पहुँच चुकी है. then we need to ask them what they want to become in life or what are their plans or what are their goals. तो वहाँ उस उम्र में हमें उन्हें पूछना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है जीवन में, आप क्या बनना चाहते हो. So we need to encourage these kind of questionings and this kind of thinking in the child. इसलिए हमारे बच्चों में इस प्रकार का विचार हमें डालना बहुत ज़रूरी है. So do not worry about silly questions, इसलिए जो मूर्खता वाले सवाल है उनके बारे में चिंता मत कीजिए, but allow them to use their imagination. लेकिन ये उन्हें अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने दीजिए. Now I want to move on to another topic. I just seem to be being short of time, but I'll try to just cover it very quickly. एक टॉपिक हम आगे का देखेंगे, जल्दी कवर करेंगे. It's about finance in marriage. तो ये आर्थिक बातों के बारे में है, शादी में पैसों के बारे में. When someone is intending to get married, even before getting married, discuss about financial aspects, financial assets and debts. ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप शादी नहीं हुई है आपकी और शादी करने जा रहे हो, तो शादी से पहले ही आप अपने होने वाले पति या पत्नी के साथ आपके जो एसेट्स है, संपत्ति, और आपके अगर कुछ कर्जे हैं उसके बारे में खुले से आप बात कर लो. Because before getting into the marriage, you should know what you are getting into. क्योंकि शादी होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी बात में प्रवेश कर रहे हो. It should not come as a shock to you after you're married. आपके जोड़ीदार को शादी के बाद झटका नहीं लगना चाहिए. Also, as a single, try to learn how to budget your expenses. ये भी उतना ही ज़रूरी है कि जब आप अकेले हो, शादीशुदा नहीं हो, उसी समय आपको बजट करना है. आपके खर्चे और आपका इनकम, उसका बजटिंग आपको करना सीखना है. Make it a habit now itself, इस बात की आपको आदत लगानी है अभी से, so that when you are married, it will be very easy for you. इसकी वजह से जब आपकी शादी होगी तो आपके लिए चीज़ें आसान होगी. Spouses need to trust each other in finance. जो जोड़ीदार है, पति और पत्नी, दोनों ने एक दूसरे को पैसों के मामले में विश्वास एक दूसरे पे करना ज़रूरी है. Remember that this is the least of matters when it comes to God. आपको याद होगा परमेश्वर की नज़र में पैसा जो है वो सबसे नीचे की बात है. All of the finance belongs to both the spouses. जितना भी पैसा है दोनों का मिला के वो दोनों का है. It's even if the husband is earning, let's say 70,000 and the wife is earning 30,000, so the total income is 1 lakh. 1 lakh belongs to both of them.
तो चाहे अगर ऐसा भी हो कि पति जो है वो 70,000 कमा रहा है महीने का, पत्नी जो है वो 30,000 कमा रही है, तो दोनों का मिलके घर में 1 लाख रुपया आ रहा है, तो वो 1 लाख पे दोनों का बराबर का हक है. Yeah, so it's not like my money and your money. There is no my money and your money in a marriage. इसका मतलब ये नहीं कि 70,000 मेरा है, 30,000 तेरा है, मेरा पैसा तेरा पैसा. शादी के बाद ये मेरा और तेरा पैसा नहीं होता है, ये हमारा पैसा होता है. Every rupee becomes both. हर एक रुपया जो है वो दोनों का होता है. So that if you have this attitude in finances, अगर आपका यही नज़रिया है पैसों को लेके, then you're not leaving room for selfishness. तो इसकी वजह से आप स्वार्थ के लिए कोई भी जगह नहीं रख रहे हो. So remember that the total income is both, belonging to both. आपको याद रखना है कि दोनों की जो आमदनी है उस पे दोनों का हक है. Now how to manage the total income is also important. तो अब ये जो पैसा आ रहा है इतना, इससे मैनेज कैसे करना है ये भी हमें समझना है. The first thing that I want to say about this is remember that you need to have a stewardship mentality. तो हमें याद रखना है कि हमें एक मैनेजर जैसा सोचना है. ये पैसा जो है इसे आपको मैनेज करना है. So all of the money actually belongs to God, but you are stewards of that money. तो आपको याद रखना है कि ये सारा पैसा जो है वो पूरी तरह से परमेश्वर का है, आप सिर्फ उसको मैनेज कर रहे हो. You can have a strategy and create 3 to 4 different bank accounts. तो आप इसके लिए कुछ प्लान कर सकते हो कि आप 2 से 3 अलग अलग बैंक अकाउंट बना के रखो, But have at least one joint account. लेकिन आपके अकाउंट में से एक अकाउंट आपका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए. The joint account is for both spouses to be able to carry out the necessary expenses. तो जॉइंट अकाउंट दोनों के लिए होता है कि दोनों मिलके कुछ खर्चे उसके द्वारा करें. It is also important to share financial responsibilities. ये भी ज़रूरी है कि दोनों जो आर्थिक जिम्मेदारियां होती है वो दोनों में बांटी जाए. So that you are aware of the entire financial situation. ताकि दोनों को पता हो कि आर्थिक तौर पे क्या परिस्थिति है और क्या चल रहा है. Now the more disciplined spouse can maintain the account which is meant for savings for the future. तो दोनों पति पत्नी की जिम्मेदारी है कि दोनों एक ऐसा कुछ सेटिंग करे, ऐसे कुछ बनाए कि वो अपने भविष्य के लिए पैसे बचाते जाए. Yeah, I said disciplined spouse because that person will not unnecessarily use that fund. और मैंने एक डिसिप्लिन्ड जोड़ीदार इसलिए कहा कि वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बिना कारण के किसी भी वजह से उस पैसे को खर्च नहीं करेगा. And I will not call that as an emergency fund. और मैं उसे इमरजेंसी फंड नहीं कहूँगा, I would call it a provision fund account मैं उसे एक प्रोविजन फंड कहूँगा. because you are providing for your future. क्योंकि आप अपने भविष्य के लिए अभी से जमा करके रख रहे हो. If there is a need, then you can of course use that money. अगर आपको ज़रूरत है तो आप उस पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो, But you need to be wise in that as well. लेकिन आपको उससे बुद्धि से करना होगा. Because finance is meant to be a means to be a blessing. क्योंकि पैसा जो है वो एक प्रकार का आशीष बनना चाहिए. Firstly to your spouse. पहला जो है वो To your spouse. पहला जो उस पे हक है वो आपके पत्नी का है या पति का है. Yeah, you need to be a blessing to firstly to your spouse. आपको वो पैसा आशीष बनना चाहिए आपके पति या पत्नी के लिए सबसे पहले. And then to your children. उसके बाद नंबर आता है आपके बच्चों का. Then your extended family. उसके बाद आपका जो बाहर वाला परिवार है उनका. And then others. उसके बाद बाकी सारे लोग आते हैं. Because you are meant to be a blessing for everyone. क्योंकि आप आशीष हो सबके लिए. Finally, I just want to say one thing. अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा. Remember that your marriage is like a story. आपको पता है कि आपकी जो शादी है आपको एक कहानी के तौर पे याद रखना है. So you need to remember to build memories for your children. तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपके बच्चों के लिए आपको बहुत सारी यादें जमा करनी है. And for the generations to come. और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी. So that your story will help them learn about your successes as well as avoid the mistakes you made.
और इसकी वजह से जब आपकी शादी को आप कहानी के तौर पे याद रखते हो और बताते हो, तो आपकी शादी के द्वारा आपकी गलतियों से वो लोग सीखेंगे और आपकी अच्छी बातों से तो ज़रूर सीखेंगे। Yeah, let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, I just want to thank you that you are instilling a value into each and everyone's heart here. स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति के हृदय में एक मूल्य डाल रहे हो। And through that, through these values, Lord, they are learning how to give you the first priority in life. और इन मूल्यों के द्वारा वो सीख रहे हैं कि आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान कैसे दे, And not be worried about anything in life, और जीवन में किसी भी बात के बारे में चिंता न करे, but instead place you first और इसके अलावा वो आपको प्रथम स्थान दे, and test and see that you are faithful in everything. और वो आपको चख कर देखे कि आप विश्वास योग्य हो और भले हो, Because you are faithful, Lord, you are trustworthy. क्योंकि आप विश्वास योग्य हो प्रभु। And once we get to know you more and more, और जैसे ही हम आपको जानने लगते हैं, we will no longer be in any kind of lack. और उसके द्वारा हम कभी भी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं देखेंगे। So whether it is our marriages, तो चाहे ये हमारी शादी हो, whether it is a financial situation, चाहे ये कोई आर्थिक परिस्थिति हो, whether it is relationships, या हमारे दूसरे रिश्तों में हो, we will not see any lack, हम किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं देखेंगे, but we will thrive in all situations लेकिन हम हर एक बात में उन्नति पाएंगे, because of your abundant blessings upon us. क्योंकि आपकी बहुतायत का आशीष हमारे ऊपर है। Thank you, Lord, that you have given us the power to believe and to make things happen. धन्यवाद प्रभु, आपने ये सामर्थ्य में दी है कि हम विश्वास करके चीज़ों को कर सकते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।